بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جنت اور جہنم یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو دنیا کا بچہ بڑی اچھی طرح سے جانتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے اب دنیا کے کسی بھی انسان کو جنت اور جہنم کے بارے میں بتائیں گے وہ آپ لوگوں کو ضرور جواب دے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی مذہب کو ضرور فالو کرتا ہو، کیونکہ دنیا کے ہر ریلیجن میں کسی نہ کسی طرح سے جنت اور جہنم کا تصور پایا جاتا ہے۔ یعنی ہر کوئی یہ مانتا ہے کہ ایک انسان کو مرنے کے بعد اپنے کیے ہوئے کاموں کے حساب سے جنت یا پھر جہنم میں جانا پڑے گا۔ بس فرق یہ ہے کہ الگ الگ مذہبوں میں اس کو الگ الگ ناموں سے جانا جاتا ہے اور اس کے بارے میں الگ الگ نظریات رکھے جاتے ہیں۔ مگر دوستو، شاید آپ لوگوں نے غور کیا ہوگا کہ جب کبھی بھی ہمارے سامنے جنت کا نام لیا جاتا ہے تو ہمارے دماغ میں دو جنتوں کا خیال آتا ہے۔ ایک جنت جو کہ مرنے کے بعد اچھے کام کرنے والے انسان کو ملے گی، اور ایک وہ کہ جو آج سے ہزاروں سال پہلے ہماری اس دنیا میں ہی ہوا کرتی تھی۔ ہاں دوستو، آپ لوگ بالکل صحیح سن رہے ہیں، ہماری اس دنیا میں بھی ایک جنت ہوا کرتی تھی، جس کو ہماری دنیا میں ہی رہنے والے ایک بادشاہ کے، جس کو شداد کے نام سے جانا جاتا تھا، اس نے بنوایا تھا۔ مگر اب سوال یہی ہے کہ آخر یہ شداد کون تھا، کس دور میں ہوا کرتا تھا، اور آج کے دور کے حساب سے دنیا کے کس علاقے میں اس کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ آخر کس طرح سے یہ جنت جیسی ایک محل ہماری اس دنیا میں ہی بنوانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ یہی ساری چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو بتانے والے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہم آپ لوگوں کو یہ بھی بتائیں گے کہ آخر بعد میں شداد نام کے اس بادشاہ کا اور اس کی بنوائی ہوئی جنت کا کیا حل ہوا تھا۔ اتنا ہی نہیں دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ یہ بھی جان سکیں گے کہ آخر شداد کی بنوائی ہوئی وہ جنت آج کے دور میں کہاں پر موجود ہے اور کس حال میں موجود ہے، کیونکہ آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ ابھی کچھ سال پہلے ہی ہماری دنیا کے ایکسپرٹ شداد کی بنوائی ہوئی اس جنت کو ڈھونڈ چکے ہیں۔ تو چلیے آج کی ہماری اس ویڈیو میں بنے رہیے، کہ آج کی یہ ویڈیو حد سے زیادہ انفارمیٹو ہونے والی ہے اور آپ کو اس ٹاپک سے متعلق وہ سب کچھ جاننے کو ملے گا جو شاید آپ نے پہلے کبھی بھی نہیں سنا ہوگا۔ دوستو، ہماری اس دنیا میں اقاف نام کا ایک علاقہ ہوا کرتا تھا اور وہاں پر قوم عاد آباد ہوا کرتی تھی۔ دراصل عربی زبان میں ریت کے اونچے اور لمبے ٹھیلے کو اقف کہا جاتا ہے، اور اسی لیے اقف کا ہی مطلب بنتا ہے اقاف۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لمبے اور اونچے ریت کے ٹیلوں کی جگہ۔ آپ کو بتاتے چلیں، اقاف نام کا یہ ایریا آج کے دور کے یمن اور عمان کے پورے علاقے پر پھیلا ہوا تھا، اور قوم عاد یہاں پر آج سے لگ بھگ 8,500 سال پہلے آباد ہوا کرتی تھی۔ دوستو، قوم عاد کی زندگی بہت زیادہ خوشگوار گزر رہی تھی، کہ ان کے پاس ہریالی تھی، اچھا پانی تھا اور کھانے کو بھرپور خوراک تھی۔ اس کے علاوہ جانور ہوا کرتے تھے، اور جو کچھ بھی اس دور میں ضروری تھا سب کچھ ہوا کرتا تھا۔ مگر آسانی کے ساتھ ملنے والے ان بے شمار نعمتوں نے آہستہ آہستہ نافرمان بنا دیا، اور یہ لوگ اب اپنے صحیح راستے سے ہٹ کر غلط راستے کی طرف جانے لگے، جس کی وجہ سے اب دستور کے مطابق ان لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے ایک پیغمبر بھیجے گئے، جن کا نام حضرت ہود ہوا کرتا تھا۔ ہود علیہ السلام نے ان لوگوں کو بار بار بہت زیادہ سمجھانے کی کوشش کی، مگر ان لوگوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی ایک بات نہ سنی، بلکہ وہ تو ان کا الٹا مذاق بنایا کرتے تھے۔ دوستو، اسی دور میں ہی اس پوری قوم کا بادشاہ ہوا کرتا تھا، کہ جس کا نام شداد ہوا کرتا تھا۔ دراصل شداد کا ایک بڑا بھائی اور بھی ہوا کرتا تھا، جس کا نام شدید بتایا گیا ہے۔ پہلے وہی سلطنت کا حکمران ہوا کرتا تھا، مگر اس کی موت کے بعد اس سلطنت کو شداد نے سنبھال لیا تھا۔ شداد کی حکومت یمن اور عمان کے علاقے سے لے کر ایران تک کے ایک بڑے علاقے پر پھیلی ہوئی تھی، جبکہ کچھ ہسٹوریکل ایویڈنس اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ سلطنت عراق سے بھی آگے تک یعنی ایران تک پھیلی ہوئی تھی۔ فی الحال حضرت ہود علیہ السلام نے دوسرے عام لوگوں کی طرح شداد کو بھی سمجھانے کی بھرپور کوشش کی، مگر شداد نے بھی ان کی ایک نہ سنی۔ آخرکار ان دونوں کے بیچ بحث ہوئی اور شداد نے ان سے پوچھا
कि अगर मैं तुम्हारे ऊपर ईमान ले भी आऊं और तुम्हारी बात मान भी लूं तो उस बदले में मुझे क्या मिलेगा। इस पर हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, इसके बदले में तुम्हारे ऊपर जन्नत हलाल हो जाएगी। ये सुनकर शद्दाद ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम से कहा कि आखिर ये कौन सी बड़ी चीज है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। जिस जन्नत की तुम बात कर रहे हो ये तो मैं भी बना सकता हूँ, इतना कि जिसको अरम के नाम से जाना जाता है। हिस्टोरियन लिखते हैं कि शद्दाद ने जन्नत बनाने का ये फैसला करते ही अपनी सल्तनत के अलग अलग इलाकों में बैठे हुए गवर्नरों को भी ये आर्डर दे दिया था कि वो अपने इलाके का सारा सोना चांदी फौरन सवारियों पर भरवा कर मेरे इस इलाके में भेजना शुरू करें कि जहाँ पर जन्नत बन रही है। सबसे पहले इतनी गहरी बुनियादें खोदी गई कि पानी के लेवल तक पहुंच गई थी। इसके बाद इन बुनियादों को संगे सुलेमानी के जरिए से भर दिया गया था। जब ये बुनियादें अच्छी तरह से जमीन के लेवल तक तैयार हो गई तो इसके बाद इनके ऊपर सोने और चांदी के ईंटों के जरिए से दीवारें खड़ी की गई और इन दीवारों की लंबाई लगभग 100 गज रखी गई थी। सुबह में जब सूरज निकला करता था और अपनी रोशनी दीवारों पर डाला करता था तो किसी भी इंसान के लिए अपनी नजरें इन दीवारों पर जमाए रखना मुश्किल हुआ करता था। और इसी तरह से ही जन्नत की चारों दीवारें कंप्लीट की गई थी। इसके बाद इन 4 दीवारों के अंदर लगभग 1000 के करीब महल बनवाए गए और हर महल 1000 पिलर के जरिए से बनाया गया था और उनमें से हर पिलर के ऊपर बेइंतहा हीरे और जवाहरात जड़े गए थे। इस जन्नत के बीच में एक बड़ी सी नहर भी बनवाई गई थी और इसके बाद इसी बड़ी नहर से बहुत सारी छोटी छोटी नहरें भी काटी गई थी। ये सारी वो छोटी नहरें थीं कि जो हर महल से होकर गुजरती थी। ओस और फुआरे जैसे चीजों की भी कोई कमी बाकी नहीं रखी गई थी। नहरों के किनारे पर बहुत सारी बनावटी यानी आर्टिफिशियल पेड़ भी लगाए गए थे। इन आर्टिफिशियल पेड़ों की जड़ें सोने की हुआ करती थी, जबकि मोती और याकूत जैसे हीरो को लाकर इनके ऊपर भी लटकाया गया था। शद्दाद के इस ख्वाबों की जन्नत में इस शहर में मकानों और दुकानों की दीवारों को मुशक ज़ाफ़रान और अंबर और गुलाब के जरिए से मुअत्तर किया गया और याकूत और मरजान की मदद से आर्टिफिशियल यानी नकली परिंदे बनाकर चांदी की ईंटों से बनी हुई दीवारों पर भी रख दिए गए थे, जो देखने में हद से ज्यादा खूबसूरत लगा करते थे। शहर की तामीर मुकम्मल होते ही यह आर्डर जारी किया गया कि सब जगह पर रेशम की कालीन बिछा दी जाए और जो नहरें मौजूद थी उनमें से किसी के अंदर तो मीठा पानी, किसी में दूध तो किसी में शहद को, किसी में शराब डाली गई। शद्दाद की ये जन्नत लगभग अगले 12 सालों के अंदर बनकर तैयार हो गई थी और तैयार होते ही शद्दाद ने फौरन अपने सभी दौलतमंद वजीरों को और दूसरे गवर्नरों और हुक्मरानों को यह आर्डर दिया था कि वो सभी इस शहर में आकर आबाद हो जाएं, क्योंकि इनको यहाँ पर वो सब कुछ मिलेगा जिसके बारे में उन्होंने कभी भी नहीं सोचा होगा। इसके बाद वो खुद भी अपने पूरे लश्कर के साथ यानी अपनी पूरी टीम के साथ घोड़ों पर सवार होकर अपनी बनाई हुई जन्नत की तरफ निकल पड़ा, ताकि पहली बार वो अपनी बनाई हुई इस खूबसूरत जन्नत में पूरी शान और शौकत के साथ एंट्री ले सके। जब वो इस जन्नत की तरफ सफर तय कर रहा था तो उसके साथ बहुत सारे आलिम और हिदायत करने वाले लोग भी थे और वो रास्ते पर बार बार इन लोगों का मजाक भी बना रहा था और उनसे कह रहा था कि क्या तुम लोग अभी तक मुझे ऐसी जन्नत के लिए परेशान किया करते थे और ऐसी जन्नत के लालच में ही दूसरे खुदा के सामने झुकने के लिए कहा करते थे कि जिस जन्नत को तो मैं खुद दुनिया में ही बना चुका हूँ और अब तुम लोगों को भी मेरी शान और शौकत और ताकत का अंदाजा हो चुका होगा। दोस्तों, ये वो दौर हुआ करता था कि जब दुनिया के इंसानों की उम्रें बहुत ज्यादा लंबी हुआ करती थी। खुद हजरत हूद अलैहिस्सलाम की उम्र भी 1000 साल से ऊपर थी। इसीलिए उसको भी बहुत सारे काबिल और समझदार लोगों की तरफ से ये मशवरा दिया गया था, तुम भी होना हो बहुत लंबी उम्र पाओगे और अभी तो तुमको इस दुनिया में बहुत जिंदा रहना है। बस इसी उम्मीद के साथ ही अपनी जन्नत की तरफ बढ़ रहा था कि अपनी मौत से पहले का एक लंबा दौर अब ये इस शहर में काटेगा। ये जैसे ही शहर के करीब पहुंचा तो शहर के सारे लोग
पहले ही इसके इस्तकबाल के लिए शहर से बाहर आ चुके थे और इसके ऊपर हीरे जवाहरात को निछावर कर रहे थे। ये भी अपनी पूरी शान शौकत और गुरूर और घमंड के साथ शहर की तरफ बढ़ता गया और जैसे ही ये अपनी इस जन्नत यानी अपने इस शहर के बिल्कुल इस दरवाजे पर पहुंचा और दाखिल होने की कोशिश ही कर रहा था, वैसे ही इसको अपने रास्ते में एक अजनबी शख्स खड़ा हुआ दिखाई दिया। अपने रास्ते में खड़े हुए इस अजनबी इंसान को देखकर शहजाद ने बड़ी हैरियत से पूछा, क्या खैर तो है? कौन है? इस पर जवाब मिला, मैं मालिकुल मौत हूँ, यानी कि मौत का फरिश्ता। शहजाद ने पूछा, आखिर क्यों आया है? जवाब मिला, तेरी रूह कब्ज करने आया हूँ, यानी कि तेरी मौत बनकर आया हूँ। इस पर शहजाद ने कहा कि कम से कम मुझे इतनी मोहलत दी जाए कि मैं अपनी बनाई हुई इस जन्नत को देख सकूं। इस पर जवाब मिला कि खुदा की तरफ से मोहलत नहीं है, लिहाजा इसके फौरन बाद शहजाद की रूह कब्ज कर ली गई। जिस वक्त शहजाद की मौत आई थी, इस वक्त इसका एक पाँव रुकाब में था जबकि दूसरा हवा में ही था, यानी वो अपने घोड़े से ठीक तरह से अभी उतर भी नहीं पाया था और अपने कदम अपनी जन्नत की चौखट पर रख भी नहीं पाया था और इससे पहले ही वो हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चला गया था। इसके बाद मशहूर फरिश्ते यानी हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने एक ऐसी होलनाक चीख मारी कि जिसके नतीजे में ये आलीशान शहर अपनी पूरी शान शौकत और सोने चांदी हर चीज के साथ रेत की रेगिस्तानों में और मिट्टी में इस तरह से मिल गया कि मानो यहाँ पर कोई ऐसा शहर हुआ ही नहीं करता था। दोस्तों, इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया। दिन महीने में बदले, महीने साल में बदले और साल सदियों में बदल गए और फिर सदियां हजार साल में बदल गईं और फिर एक दौर ऐसा आ गया कि जब ना तो इसकी जन्नत के बारे में हमारी दुनिया का कोई इंसान जानता था और ना ही शहजाद के बारे में, मगर हजारों साल के बाद अचानक से दुनिया का ध्यान एक बार फिर से इस जन्नत की तरफ इस वक्त गया कि जब कुरान में इस जन्नत का जिक्र आया। हाँ दोस्तों, आज से हजारों साल पहले शहजाद नाम के बादशाह की तरफ से बनवाई गई ये खूबसूरत और आलीशान जन्नत का जिक्र मुसलमानों की सबसे मुकद्दस किताब कुरान मजीद में मौजूद है। लेकिन कुरान में आने के बाद भी सिर्फ इस्लाम मजहब को फॉलो करने वाले लोग ही इस पूरे कंसेप्ट पर यकीन रखा करते थे, यानी इस बात पर यकीन रखा करते थे कि कोई शहजाद हुआ करता था जिसने ऐसी जन्नत बनाने की कोशिश की थी। मगर मुसलमानों के अलावा दुनिया के दूसरे आम लोग बिल्कुल भी यकीन नहीं रखा करते थे, क्योंकि जाहिर है इन सब चीज़ों पर यकीन रखने के लिए बहुत सारे हिस्ट्रिकल एविडेंस होना भी ज़रूरी थे। मगर दोस्तों, पूरी दुनिया इस वक्त हैरान रह गई कि जब 1991 और 92 के करीब में एक लॉजिकल टीम अमान और यमन के इस पूरे इलाके में इस शहर को ढूंढने में कामयाब हो गई कि जहां पर किसी दौर में ये शहर यानी ये जन्नत बनाई गई थी। आपको बताता चलूं कि आप लोग भी इस शहर के बारे में गूगल पर आराम से लिखकर पूरी तरह से सब कुछ पढ़ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि शहजाद की बनाई हुई इस जन्नत में ज़्यादा से ज़्यादा पिलर्स का इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि कौम आद के जो लोग हुआ करते थे बहुत से ज़्यादा ताकतवर और लंबे चौड़े हुआ करते थे और वो पिलर बनाने में माहिर समझे जाते थे। इसके अलावा कुरान में भी इस शहर का जिक्र मज़ातिल इमाद कहते हुए ही किया गया है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसे मज़ीद हिस्ट्रिकल वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ वाली घंटी को दबा दें। शुक्रिया।